So alcohols here can be first classified on the basis of the number of OH groups which they have. So the classification can be first done on the basis of number of OH groups, or you can say the number of hydroxy groups, that is OH groups. Okay, so now let us divide them into three categories here on the basis of the number of OH groups. So number one, it can be said as the monohydric alcohols. The monohydric alcohols. Number two, the alcohols can secondly be classified as डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. नाउ व्हाट दे मीन, इनका क्या मतलब है वो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नंबर थ्री, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स. Okay, so we start discussing with, let us say, first example, that is the monohydric alcohols. So mono, can anyone say what do you mean by mono? What do you mean by mono? Sing- Yes, the single. yes, mono means single, or you can say one. So monohydric alcohols are those which contain single OH group. So all those alcohols which contain single OH group, only one OH group, they are called as monohydric alcohols. For example, let's take few examples over here. Let us say methanol, CH3OH, or let's talk about ethanol, C2H5OH, etc. So all of these are called as monohydric alcohols. Okay. Now, ethanol एक ऐसा compound है जो हम widely use करते हैं. Like ethanol is, to let you know, the ethanol is used widely in the form of wine. People use ethanol because ethanol can be consumed easily. So ethanol can be used, but methanol, for your information, a 30 percentage concentrated methanol can even cause blindness. So methanol is so dangerous. So methanol is very dangerous if it is used, but ethanol is consumed by people in general. So let's talk about now dihydric alcohols. Dihydric. So monohydric we saw here, that monohydric means which contains single OH group. Now dihydric alcohols. Dihydric alcohols का मतलब होगा those alcohols which contain how many OH group? Two OH groups. So those which contain two OH groups, they are known as dihydric alcohols. For example, a very famous example which we generally use here, that is ethylene glycol, is a very important organic compound, ethylene glycol. So this compound is known as, I will write here, this is known as ethylene glycol. Now how these compounds are named, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. Another example, let's take, we have CH2, 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 OH. So like this we can give innumerable compounds which have two OH groups, and how to name them that we'll see shortly. Third category, that is trihydric alcohols. So trihydric alcohols are those which contain three OH groups. So all those alcohols which contain three OH groups, they come under this category. Those which contain three OH groups, they are known as trihydric alcohols. Okay, so now if we move further about how to classify alcohols, so now the another important classification which comes over here is, we can say, number two, which is on the basis of the type of carbon atom, on the basis of type of carbon atom to which
OH group it's attached, to which OH group is attached. For example, so let us first talk about here. So let us first here talk about primary alcohols. So here we can classify them to three categories. Number one, primary alcohols. Number two, secondary alcohols. And number three, tertiary alcohols. तो देखो, आपने इन 11th क्लास इन द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स आपने कार्बन एटम्स के बारे में पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, एटसेट्रा. सो कैन सम ऑफ यू से दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइमरी कार्बन? हम प्राइमरी कार्बन किसे कहते थे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर? एनीवन? Yes. Which atoms we used to call as primary carbon? 1 degree carbon. Yes, 1 degree carbon, that is just another name of primary. What does it mean? Carbon atom is attached to only one carbon. Yes, very good. So ऐसा कोई कार्बन एटम जो सिर्फ एक दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन. सिमिलरली कोई ऐसा कार्बन जो दो और दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हो उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन. एंड सिमिलरली टर्शियरी कार्बन. नाउ व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल्स, दैट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. So first let us talk about primary alcohol. So this is very basic thing जो हमें पता होनी चाहिए, primary alcohol और 1 degree alcohol. So those alcohol groups, or we can say those groups where the OH group is attached to a primary carbon. Is this clear? तो वो सारे अल्कोहल्स जहां पर OH ग्रुप एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स. फॉर एग्जांपल, let's talk about CH3, CH2OH. So this is also known as ethanol. Now how is that? वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. So if you see, ये OH ग्रुप यहाँ पर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है, so सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है. That means this carbon is a primary carbon. So this alcohol will be known as primary alcohol. Is this clear? Another example. Let us say another notation we take. अब यहाँ पर अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो लेट अस से हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया. तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है? क्या ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है? देखो यहाँ पर जिस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा है ये सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल हुआ. अनदर एग्जांपल. क्या आप देख सकते हैं ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल होगा? बिकॉज ये OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. ओके, यहाँ तक क्या हमें क्लियर है? Okay, so we move to next, secondary alcohol. Secondary alcohols, these are those groups where the OH group is attached to a secondary carbon. ये वो सारे अल्कोहल्स होंगे जहां पर OH ग्रुप एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, to a secondary carbon atom. For example, we take CH3, CH, CH3, OH. So as you can see here, ये OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो दो अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. So this is an example of secondary alcohol.
This is also known as isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol. Now how these names are given, that we will see in some time. Third category over here, अगर हम third classification की बात करें, so that is tertiary alcohol in this category. Tertiary alcohol or 3-degree alcohol. So these are those groups where an OH group is attached to a tertiary carbon. To a tertiary carbon atom. For example, अगर हम यहाँ बात करें CH3, C, CH3, CH3, OH. So as you can see here that this is a tertiary carbon. Tertiary carbon. And this alcohol is called as a tertiary alcohol. अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट किया होगा कि जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की यहाँ पर बात की, इन सब में एक चीज कॉमन है. कैन एनीवन गेस व्हाट इज द वन थिंग कॉमन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स? ऐसी एक क्या चीज है जो यहाँ पर कॉमन है? OH is directly attached to carbon. यस, ओके. एनीथिंग एल्स? अल्कोहल का मतलब यही हुआ कि OH is directly attached to carbon. Yes, that is correct. Something more specific. ठीक है, एक हिंट देता हूं मैं आपको. हम कार्बन की बात कर रहे हैं. इन तीनों केसेस में कुछ कार्बन की स्पेसिफिक बात कि किस तरह का कार्बन है हमारे पास. यस, Hydrocarbon, hydrogen bonded. okay, something more specific. Yes, as Vidyadhar has rightly said that in all these three cases जिस कार्बन से OH जुड़ा है that is sp3 hybridized carbon. Can you see this? हमने जो भी यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं उन सारे केसेस में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है that is sp3. Is everyone agreeing with this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So primary, secondary and tertiary alcohols इन सारे केसेस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. तो अभी तक हम सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रहे हैं. Okay, so we can say here that in all the above cases the carbon atom to which OH group is attached is sp3 hybridized. It is sp3 hybridized. Is this clear? So now let us move to the another term which is used here for alcohols. So next term which is used over here is known as vinylic alcohol. Vinylic alcohol. Now does anyone remember कि हमने हाइड्रोकार्बन्स में विनाइलिक कार्बन के बारे में पढ़ा था? What is meaning of vinylic carbon? Anyone remembers what is meaning of vinylic carbon? sp2 hybridized carbon. Yes, शायद. very good, very good. So for example, if I say that we have CH2 double bond CH and here this carbon has free valency, इसके पास यहाँ पर एक free valency है. Free valency means इससे कोई भी और ग्रुप आगे जुड़ सकता है. तो क्या आप मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? sp2. sp2. Yes, sp2. good. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2. तो इसी कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन. विनाइलिक कार्बन. तो अगर इस विनाइलिक कार्बन से कोई OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है तो इसे हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल.
Is this clear? Is this Yes, point sir. clear? Yes, sir. Okay. Now next, another term which is used over here is called as allylic alcohol. Allylic alcohol. अब हमने allylic carbon के बारे में भी पढ़ा होगा in case of hydrocarbons. What do we mean by allylic carbon? OH is directly attached sp3 hybridized. sp3 hybridized. कुछ और specific चीज? benzene के साथ attached. Yes, please repeat again. Benzyl के साथ direct attached. Not exactly. देखो allylic का मतलब क्या है? Yes. Doubly bonded carbon to another carbon, शायद. Okay, so you mean to say that एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से एडजेसेंट है, करेक्ट? Yes, sir. यस. सो allylic कार्बन ऐसा कार्बन है which is having sp3 hybridization and it is attached next to the double bonded carbon. For example, CH2 double bond CH, CH2OH. तो ये जो कार्बन है इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ. दिस कार्बन इज नोन एज allylic कार्बन. और ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे allylic अल्कोहल. ठीक है? Now this allylic alcohol can also be divided into three, that is primary, secondary and tertiary. तो आप ये यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात कर रहे हैं, हम मेनली sp3 कार्बन से डील कर रहे हैं. इज दिस करेक्ट? Yes. ठीक है. तो यहाँ पर भी हम, सिंस ये एक sp3 Sir, कार्बन can है, you please repeat this? देखो allylic कार्बन का मतलब ये हुआ एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं allylic कार्बन. नाउ allylic अल्कोहल क्या हुआ? एक ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप allylic कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसको बोलते हैं allylic अल्कोहल. अब सिंस यहाँ पर OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C OH CH2 CH2 OH. तो अब क्या आप बता सकते हैं कि इस केस में allylic अल्कोहल्स कितने हैं हमारे पास? हाउ मेनी allylic alcohols we have here? One. One. और वो किस तरह One. का है? One. प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? Secondary. सेकेंडरी है. तो हमारे पास ये एक allylic सेकेंडरी अल्कोहल है. सो वी हैव allylic सेकेंडरी अल्कोहल which is one. ओके. और हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स कितने हैं यहाँ पर? One. 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 Okay, so I hope this is clear about allylic alcohol. ठीक है? Yes, sir. Okay, so we move to next. Now जिस तरह से हमने allylic वर्ड यहाँ पर यूज किया, देखो allylic हम तब यूज कर रहे हैं जब हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है. ठीक है? तो हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है और डबल बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन पर जब OH ग्रुप जुड़ा है उसे हमने बोला allylic. अब यही बात अगर मैं क्लोज चेन और टू बी मोर स्पेसिफिक अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं, so mainly aromatic means we are using the example of benzene here. So if I am using example of benzene, another term which is used here is known as benzylic alcohol. ठीक है? benzylic alcohol. तो benzylic alcohol का मतलब क्या होता है? In case of a benzene ring, the carbon which is directly attached to benzene having one free valency is known as a benzylic carbon.
इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज बेंजाइल कार्बन। ठीक है, सो अगर हम इस कार्बन पर एक OH ग्रुप लगाते हैं, देन इट बिकम्स बेंजाइलिक अल्कोहल। इज दिस क्लियर? Yes. नाउ दिस कार्बन is also having sp3 hybridization। तो इसके भी हम तीन कैटेगरीज कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पूछा जाए दैट वी हैव दिस कंपाउंड, अब बेंजीन को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं विद ए सर्कुलर रिंग इनसाइड, बिकॉज ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पर रेजोनेंस होता है। सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इनसाइड द रिंग, तो इसीलिए हमको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। Now, if I take example like this, then in this case I have secondary carbon to which the OH groups are attached. So this, okay, this is again becoming a dihydric alcohol. ठीक है, this is a dihydric alcohol. Let us first stick to the monohydric alcohol जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम monohydric alcohols की बात करें, then let us say I have this benzene ring and this is a carbon which is attached to CH3 and here I have one OH group। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि here we have a monohydric alcohol और ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि सेकेंडरी कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सो दिस विल बी नोन एज अ सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. सो बेंजाइलिक इज ए स्पेसिफिक स्पेशल केस ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक ओपन चेन सिस्टम होता है हमारे पास। बेंजाइलिक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब स्पेसिफिक हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। वैसे आपको यहाँ पर भी ये अलाइलिक दिख सकता है, ठीक है, आप इसे भी अलाइलिक बोल सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इन वन सेंस इट इज अलाइलिक, बट सिंस यहाँ पर एक क्लोज चेन है, बेंजीन है हमारे पास, तो इसीलिए इसको हम अलाइलिक ना बोल के बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ अभी हमने बात की अल्कोहल्स की। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कैटेगरी ऑफ फिनॉल्स। तो अब हम यहाँ पर फिनॉल्स की बात करते हैं। सो फिनॉल्स हम किसे बोलेंगे? When the OH group is directly attached to the benzene ring. When the OH group is directly attached to a benzene ring, this is called as phenol. और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा sp2। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फिनॉल, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो जैसा कि हम जानते हैं that for naming the organic compounds there is one organization which is called as IUPAC. yes, IUPAC. so this is the IUPAC name of this compound and this is the common name of this compound। अब बहुत बार ऐसा भी होता है नोमेनक्लेचर में कि कुछ कॉमन नेम्स को एज ए IUPAC नेम भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो समटाइम्स फिनॉल इज आल्सो यूज्ड, but most commonly we use here phenol in general nomenclature। now this is example of a monohydric phenol। अगर हम डाइहाइड्रिक फिनॉल की बात करें like this, तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनके नाम हमें याद रखने होंगे। ठीक है, अब इस केस में मैंने क्या किया, इस OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर इस बेंजीन पर एक और OH ग्रुप लगाया है, तो इसे हम बोलते हैं केटिकॉल। ये नाम हमें याद रखना है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज केटिकॉल। इज दिस क्लियर? अगर आपको इसका IUPAC नेम पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आप इसका IUPAC नेम बता सकते हैं? एनीवन?
1,2 dihydroxybenzene. Yes, very good, Harshal. So this is called as 1,2 dihydroxybenzene. ओके, इनके कॉमन नेम्स हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अब इसी डाइहाइड्रिक अल्कोहल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. इस OH को ऑर्थो से हटाकर अगर हम मेटा पर लगाते हैं, so this compound is called as resorcinol. This compound is called as resorcinol. This is also important compound जो आपको याद रखना है with its name. Its IUPAC name will be 1,3 dihydroxybenzene. Next, if this OH group I take it to the para position, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोल. हाइड्रोक्विनोल, तो ये भी आपको याद रखना है. So these are examples of phenols. Okay. So in this case, ये हुआ monohydric phenol. These are dihydric phenols and trihydric phenols, where you have 3 OH groups which are directly attached to benzene ring. कोई भी जनरल एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, like this. It is an example of trihydric alcohols. Okay. तो कॉमन नेम्स आपको सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स के याद रखने हैं, लेकिन IUPAC नेम हमें किसी भी कंपाउंड का लिखना आना चाहिए. So that we'll see in some time that how do we write IUPAC names in case of alcohols, phenols. Now, थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज ईथर और ईथर्स. सो ईथर्स, इनका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, वेयर वी हैव R dash, they are attached to oxygen atom in between. Okay, so where R and R dash are some alkyl groups. They are some alkyl groups. So इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ईथर, where oxygen atom is surrounded by two similar or different alkyl groups. तो ये symmetrical ethers भी हो सकते हैं और unsymmetrical ethers भी हो सकते हैं. ठीक है. Now let us take few examples here. हम यहाँ पर कुछ examples लेते हैं, and here you have to identify that we have how many primary alcohols and how many secondary alcohols and how many tertiary alcohols. Okay, so let us take some examples. In the following, we have to identify the number of primary, secondary, and tertiary alcohols. Number 1, yes, so you can start doing with this. Yes, so बताइए, in first one हमारे पास कितने प्राइमरी अल्कोहल्स हैं?
We have here 2 primary alcohols. Okay, how many secondary alcohols? One. One. 1. How many tertiary alcohols? One. 1. Good. Okay, second one. One primary. One One primary. primary One. alcohol. Only and only one primary alcohol. Okay, in third one. Two secondary, one tertiary. Two secondary, one tertiary. One tertiary. Yes. So 2 secondary alcohols and we have here 1 tertiary alcohols. Okay. ये आपको समझ में आ गया? What is meaning of Me and Et? Yes, sir. Yes. Me means methyl group Yes, sir. and Et means ethyl group. Okay. So in this similar fashion, you can also be asked to tell about allylic carbon, allylic alcohols, benzylic alcohols, vinylic alcohols, etc. Is this point clear till here? जो हमने यहाँ तक discuss किया? Yes, sir. Okay. So now let us move to the next part, that is the IUPAC nomenclature. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्कोहल्स के लिए देखेंगे and then we'll go to phenols. So सबसे पहले यहाँ पर हम IUPAC nomenclature की बात करते हैं for alcohols. ठीक है, तो देखो आपने जब IUPAC nomenclature पढ़ा होगा in case of हाइड्रोकार्बन्स, तो आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं. चलो मैं आपको एक जनरल थंब रूल यहाँ बताता हूँ जो हम किसी भी नोमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं फॉर एनी नोमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड. ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले बीच में लिखते हैं वर्ड रूट. वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में हम कुछ चीजें लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ चीजें लिखते हैं. तो वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स. फिर वर्ड रूट के इसी तरह सिमिलरली वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर वो चीज बता रहा हूँ जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ जस्ट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स. ओके, तो देखो अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ? The main chain. Number of main chain. नंबर ऑफ Number कार्बन of- एटम्स इन द पेरेंट चेन. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, ये आपको याद रखना है. So these are the number of carbon atoms in the parent chain. For example, अगर हमारे पास सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? Methyl. मिथ. Methyl. अगर दो कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, It. इथ. सिमिलरली अगर तीन कार्बन एटम्स हैं, Prop. 4, But. यस, Bute. एटसेट्रा. आप सब जानते हैं आगे का. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स. देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? एनीवन? प्राइमरी सफिक्स देखो प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है अगर हमारे पास जो पेरेंट चेन है अगर वो एक अल्केन है, अगर हमारी पेरेंट चेन अल्केन है तो उस केस में प्राइमरी सफिक्स होगा एन. अगर हमारे पास पेरेंट चेन एक अल्कीन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा ईन. अगर हमारी पेरेंट चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है या फिर वो अल्काइन है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स होगा आइन. क्या ये बात आपको समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो हमारे पास एक ऐसा पेरेंट चेन है जिसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो उस केस में प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? Di. Die in. यस, वेरी गुड.
अगर हमारे पास एक ऐसा पेरेंट चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस केस में क्या होगा? यस, देखो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइन। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा इनाइन। अब यहाँ पर आपको लोकेंट्स मेंशन करना होगा कि जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड और जिस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है वो लोकेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we are talking about secondary suffix. देखो secondary suffix क्या होता है? Secondary suffix is used only for functional groups. ये सिर्फ functional groups के लिए यूज करते हैं हम। सिर्फ functional groups का नाम लिखने के लिए या फिर उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं secondary suffix। ठीक है, अब यहाँ पर हम अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें वही पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पर अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ अल्कोहल्स, अगर हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप या फिर जिसको मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकता हूँ, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल है, दैट इज OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उस केस में हम इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं और वो होगा यहाँ पर ओल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि OH ग्रुप अगर लगा है और वही एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओल। ठीक है, अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी सीक्वेंस विच इज गिवन बाय IUPAC, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उस प्रायोरिटी के हिसाब से अगर OH ग्रुप है और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो OH ग्रुप के बाद में आते हैं, तो उस केस में हम OH को मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज ओल। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर OH उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ, अगर OH मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो उसको मैं यहाँ पर जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देता हूँ, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो अगर OH एज ए जूनियर फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो उसके लिए हम उसका नाम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। सो हाइड्रोक्सी इज यूज्ड व्हेन OH इज एक्टिंग एज ए जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ उसके ऊपर भी और कोई बेटर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल COOH, CHO एटसेट्रा। अगर ये सारे ग्रुप्स हैं तो OH को हम जूनियर फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हमें ऐसे ही कंपाउंड्स मिलेंगे जहां पर OH एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब पूरा चैप्टर भी अल्कोहल के नाम पर है तो मेन फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा होना चाहिए? Alcohol. अल्कोहल। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हुआ सेकेंडरी सफिक्स। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही यूज करते हैं हम यहाँ पर, तो सिर्फ साइक्लो हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पे हम साइक्लो यूज करते हैं, साइक्लो। इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमने लिया ये कंपाउंड, तो देखो यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4. 4। सॉरी, तो वर्ड रूट क्या हुआ हमारा? Bute. तो वर्ड रूट मैंने लिखा है यहाँ पर ब्यूट। अच्छा, ये एक सैचुरेटेड पेरेंट चेन है या अनसैचुरेटेड? Saturated. Saturated. तो हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? ब्यूट प्लस एन। N. ओके, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? Ol. ओल। All. चलो ये बात हो गई वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद। अब वर्ड रूट से पहले क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा इस केस में?
cyclo, साइक्लो साइक्लो, तो हमने यहाँ लगा दिया साइक्लो। ठीक है, साइक्लो ब्यूट एन प्लस ऑल। अब देखो अनदर चीज विच यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी हमारे पास एन इन आइन इनमें से किसी का भी मतलब बेसिकली प्राइमरी सफिक्स, जब भी प्राइमरी सफिक्स ई से एंड होता है और उसके बाद आने वाला सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड से हमारा मतलब है वोवेल साउंड, देखो शब्दों पे ध्यान देना। ठीक है, वोवेल साउंड का मतलब है ए ई आई ओ यू। अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स ऐसा है जो इन वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू, उस केस में इस ई को हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? Yes, sir. तो अब हमारा नाम क्या हो जाएगा इस Yes, कंपाउंड sir. का? साइक्लोब्यूटेनॉल। सर वाई होगा तभी ड्रॉप करेंगे ना यस, व्हाट यू आर सेइंग? सर? अगर अगर वोवल के साथ वाई भी होगा तो भी ड्रॉप करेंगे ना? यस, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था हमें वोवल साउंड देखना है, साउंड। ठीक है, तो जब भी हम वाई लिखते हैं तो वाई जब हम लिखते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, देखो ये एग्जांपल लिया हमने। अब मुझे, ठीक है ये हमारे आउट ऑफ दिस चैप्टर है, फिर भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। बताओ नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट हैंड साइड से? लेफ्ट लेफ्ट से। तो इसको लेफ्ट मैंने लेफ्ट दिया लेफ्ट नंबर 1, 1 2 3 4। बताओ इसका नाम क्या होगा? Butenine. ब्यूट इनाइन, बस काफी है? butene, 1,3-butenine. 1,3 ब्यूट इनाइन। कोई और? but1 in 3 यस, करेक्ट। देखो हम जब भी कोई आईयूपीएसी नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें वही नाम बताना है कि जो अगर पूरी दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति उस नाम को देखे तो वो उस कंपाउंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, तो उसमें कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए उस नाम में। तो देखो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर लगा हुआ है, 1 और 2 पर। तो जब भी ऐसे ऐसे पोजीशंस हो, हम हमेशा लोवेस्ट लोकेंट को चूज करते हैं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में क्या मानूंगा, 1। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या लेंगे, 3। तो डबल बॉन्ड लगा है 1 पर, ट्रिपल बॉन्ड लगा है 3 पर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा हमारा, ब्यूट। But अब 1 पे लगा हुआ है इन, तो उसको मैंने यहाँ पर रफ में लिख दिया, 1 पे लगा हुआ है इन, 3 पे लगा हुआ है आइन। हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं। तो इन और आइन में सबसे पहले आता है ई, इसीलिए ई को हम प्रेफरेंस देंगे। फिर मैंने यहाँ लिखा ब्यूट 1 इन, और उसके बाद आता है 3 पर आइन। तब देखो अब यहाँ पर ये वाई से शुरू होता है, लेकिन इसको हम वाइन नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आइन। ठीक है, तो व्हेन हम इसको जब आइन पढ़ते हैं तो वोवेल साउंड कम्स ऑफ आई, इसीलिए हम इस ई को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। एनी डाउट इन दिस? no, sir. नो ठीक है, सर। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर y भी No, आता sir. है, यस, तो अगर y भी आता है तो उसको हम i प्रोनाउंस करते हैं, और इसीलिए हम उस केस में भी e को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, चलो, तो ये बात हुई प्राइमरी प्रीफिक्स की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स से हमारा मतलब क्या है, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स
that all the junior functional groups junior functional groups are used over here. तो यहाँ पर हम सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम कहाँ पर आ गया, सेकेंडरी सफिक्स में, और उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स, उन सब का नाम यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, सम ग्रुप्स which are always considered as a substituent. Some groups which are always considered substituent. Substituent का दूसरा नाम होता है साइड चेन, जो हमेशा साइड चेन की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2, अगर NO2 लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज होगा और उसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रो। अगर हमारे पास NO है तो उसका नाम भी सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाएगा और उसका नाम होगा नाइट्रोसो, ठीक है। अगर हमारे पास OR लगा हुआ है, R, देखो R ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, तो अगर ऐसा है तो इसका नाम लिखा जाएगा अल्कोक्सी। अगर हमारे पास कोई हेलोजन ग्रुप है तो उसका नाम लिखा जाएगा हेलो। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो और आयोडो, इस तरह से। क्या ये चीज हमें समझ में आती है? ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. 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 ओके, सो Yes, ये sir. आपको एक जनरल रूल याद रखना है कि किस तरह से हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और लेफ्ट में हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलो एग्जांपल्स लेने से पहले आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ जो जनरली हम टर्म्स यहाँ पर यूज करते हैं। देखो, जब भी हमारे पास कोई अल्केन है, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मीथेन था और मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन गया मिथाइल, इसको हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। अगर हमारे पास CH3 CH2 CH3, इस तरह से हमारे पास प्रोपेन था और मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन गया, अब मैं टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, दैट इज CH2 CH2, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। कई बार आपको N वर्ड यूज किया हुआ मिलेगा, तो N का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। अगर यही मैं यहां से रिमूव करता, अगर मैं एक हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से रिमूव करता तो ये कुछ इस तरह से मिलता हमें, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या कोई बता सकता है इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे आप? 1-methyl ethyl। 1-methyl ethyl, ठीक है। देखो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी एज ए साइड चेन कोई ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है तो जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसको हम देंगे नंबर 1, फिर उसके बचे हुए लॉन्गेस्ट चेन को देंगे नंबर 2। तो 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो सबसे पहले मैंने लिखा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या हो गया यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, दैट इज 1 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम 1 मिथाइल इथाइल। ये आपको समझ में आ गया? Yes, sir.
दूसरा एग्जांपल, Yes. जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH OH CH2 CH3। चलिए बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से की जाए? लेफ्ट साइड से। अच्छा मुझे ये बताओ कि नंबरिंग हमें क्या उस कार्बन से करनी चाहिए जिस पे OH जुड़ा है? That will not make a difference. अच्छा कैसे? देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3, या फिर मैं अगर नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, बताओ कौन सा सही है या दोनों सही है? Longest chain. The second one. Blue वाला। ब्लू Blue वाला, one is right. यस। तो डज इट मेक अ डिफरेंस और नॉट? Yeah, it makes a difference. यस गुड। देखो तो हम ब्लू वाला चूज करेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत जो हम बच्चे जनरली यहाँ पर गलती करते हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल COH हुआ, CHO हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ, अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होता है, उस केस में उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम नंबरिंग करते हैं। या फिर अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो हम उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं जिस कार्बन पर वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या ये बात हमें समझ में आती है? Example देना जरा। देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया एक साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन पर लगा हुआ है COH ग्रुप। अब यहाँ बताओ पेरेंट चेन कौन सी है? Ring. यस, रिंग होगी हमारी पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से की जाए? Functional group is preferred. फंक्शनल ग्रुप इज प्रिफर्ड इन व्हाट सेंस? फॉर नंबरिंग, ठीक है। No, no, sir, we didn't understand. देखो साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास और यहाँ पर लगा हुआ है COH ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो पेरेंट चेन हमारे पास वो हम चूज करेंगे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो और जिसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये COH ग्रुप इस 6 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो क्या यही होगी हमारी पेरेंट चेन? Yes, sir. क्या ये हमारी पेरेंट चेन होगी? Yes, sir. ठीक है। अब जो मैं पहले बता रहा था आपको कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे यहाँ पर COH, तो जिस कार्बन से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम देंगे नंबर 1। अब आप इसको नंबरिंग Sir, किधर but से भी कर सकते just हो। before this, sir, you had given the example of cyanide and you told that the number 1 should be the carbon with the nitro group attached to it, the nitrogen attached to it. नहीं नाइट्रोजन नहीं, कार्बन। देखो So carbon is number 1. So why in this example you're not taking number 1 as COOH? यस, देखो मैं समझ गया आपकी बात। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ CH3 CH2 CH2 COH। अब देखो यहाँ पर COH को मिलाकर ये एक पेरेंट चेन बनती है। यस्मीन, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? देखो यहाँ पर COH को मिलाकर ये पेरेंट चेन बनती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं COH को इसके साथ मिलाऊं तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि 6 कार्बन तो एक साथ रिंग में है और ये एक कार्बन बाहर अकेला है, तो इन सब सातों कार्बन को मैं एक साथ नहीं मिला सकता। तो इस केस में Yes, sir, understood. तो इस केस में हम जब ये एक ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें मेरे COH का कार्बन भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो इसमें मैं इसे दूंगा नंबर 1 2 3 एंड 4। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir, it is clear. तो जब भी हमारे पास किसी ओपन चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसी कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा। लेकिन जब
हमारे पास OH का केस है, अल्कोहल का केस है, तो यहाँ पर OH से जुड़े हुए कार्बन को उतना प्रीफरेंस नहीं देते हैं, बिकॉज यहाँ से हमें पेरेंट चेन स्मॉलर कार्बन एटम्स की मिलती है और लेस कार्बन एटम्स की मिलती है, तो वी गो फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब मुझे बताइए इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? 2-butanol. 2-butanol भी लिख सकते हैं, यस, और वी कैन राइट butane to all. यस, ब्यूटेन टू ऑल, बोथ द नेम्स आर करेक्ट। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, बताइए इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 डायोल। थोड़ा फिर से सोच के बताइए। 1,2,3 Sir, ट्राइप्रोपेनॉल। triol. यस, ट्राइओल। ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है हमारे पास, सो इट विल बिकम प्रोपेन। सबसे पहले मैंने लिखा वर्ड रूट प्रोपेन, ये लगाया प्राइमरी सफिक्स प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, ये न्यूमेरिकल सफिक्स हो गया ट्राई ऑल। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया, बताइए इसका नाम क्या होगा? chlorocyclohexanol. थोड़ा और सोच के बताइए, लिटिल इम्प्रूवमेंट। 1-chlorocycl देखो हमारे पास यहाँ पर Cl है और OH है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ इनमें से? OH, विच इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? OH. OH। ठीक है, तो OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप PMPL बस में चल रहे हो और कुछ सीनियर सिटीजन से बस में, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सीनियर सिटीजन को या जूनियर सिटीजन? चलो जूनियर सिटीजन तो कुछ होता नहीं है, सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी या किसी और को? Senior citizen. यस, तो वही बात है यहाँ पर भी कि प्रायोरिटी किसे दी जानी चाहिए, OH को या Cl को? OH को। OH. OH को। तो OH को मिलेगा नंबर 1। ठीक है, OH को मिलेगा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता था, लेकिन उस केस में क्लोरीन पर नंबर ज्यादा मिलता। वी वांट लोएस्ट लोकेंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, यस, साइक्लोहेक्सेन Nol. 1 ऑल। On. इज दिस क्लियर? सर यस बोलो। सर आप मतलब नंबरिंग में जो प्रायोरिटीज फंक्शन ग्रुप है वो टेबल एक बार मतलब बता हाँ सकते सर, हो हम क्या? हाँ सर, हमें भी बताइए सीनियर सिटीजन्स कौन से हैं। प्रायोरिटी ठीक है, टेबल। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल हम पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रायोरिटी टेबल दे देता हूँ। ठीक है, चलो ये ठीक। एग्जांपल, इसका नाम बता दो जल्दी से। सर बट हमें पता ही नहीं इसमें सीनियर सिटीजन कौन है। देखो ये ET क्या है? ET स्टैंड्स फॉर इथाइल। ठीक है, ET स्टैंड्स अच्छा फॉर अच्छा, इथाइल। ऑल अब राइट ऑल ये तो कार्बन राइट। स्केलेटन है। हाँ ये तो OH ही हुआ ना फिर। यस, तो हम हाँ OH को दे दें नंबर 1 और इसे क्या दें नंबर 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
2 ethyl cyclohexane 1 2 ol. ethyl फिर से बोलिए एक बार 2 सोच के। ethyl cyclopentane 1 ol. यस, ठीक है, 2 इथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। अब यहाँ पर आप 1 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ चलेगा, ठीक है। इवन इन दिस केस, इवन इन द अबव केस, अगर आप यहाँ पर 1 मेंशन करते भी हो या नहीं भी करते, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों? बिकॉज अगर इथाइल को मैंने 2 नंबर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है OH को क्या दिया होगा? 1। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? yes sir. ठीक है, Yes, sir. सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 1 आप लिख भी सकते हो या ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। Yes, चलो sir. Yes, sir. अब मैं आपको जल्दी से ओके, अब मैं आपको जल्दी से प्रायोरिटी सीक्वेंस बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस बता रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रायोरिटी सीक्वेंस बता रहा हूँ यहाँ पर, उनके प्रीफिक्स और सफिक्सेस नहीं बता रहा हूँ अभी, बिकॉज इट विल टेक लिटिल लॉन्गर टाइम। तो मैं आपको सिर्फ प्रायोरिटी सीक्वेंस बताता हूँ और उसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी Yes. दी जाएगी सीनियर मोस्ट सिटीजन को, तो वो क्या होगा? COH ग्रुप, COH ग्रुप। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी SO3H ग्रुप को। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, SO3H ग्रुप्स। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी एनहाइड्राइड को। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी ईस्टर को, एस्टर। देन कार्बोनिल हैलाइड्स, COX। Then we have amide functional group. After that we have cyanide functional group. Then we have aldehyde. Then we have ketone. Then we have OH group. Then we have phenol group. PH stands for benzene ring, so इसको हम बोलते हैं phenol. Then we have double bond. Then we have triple bond. And then we have all the halogens. ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या है? सल्फोनिक एसिड। फिर क्या है? एनहाइड्राइड। फिर है एस्टर। फिर है एसिड हैलाइड। फिर है अमाइड। फिर है साइनाइड। फिर है CHO। अब साइनाइड के तुरंत बाद यहाँ पर आइसोसाइनाइड भी आता है, बट उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। उसके तुरंत बाद आइसोसाइनाइड भी आता है। फिर हमारे पास है अल्डिहाइड, कीटोन, OH मींस अल्कोहल। इसी के साथ यहाँ पर आप SH भी इंक्लूड कर सकते हो, थायोल ग्रुप। देन वी हैव फिनॉल, देन वी हैव डबल बॉन्ड, देन वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन वी हैव हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रायोरिटी सीक्वेंस। लेकिन ये सिर्फ प्रायोरिटी सीक्वेंस जानना काफी नहीं है, हमें इसको याद भी करना है। तो इसको याद करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम याद रखेंगे कार से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं, ओके। तो क्या आप ये शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। तो देखो, इसको हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको हमने बोला कार। ये है सल्फोनिक एसिड, तो इसको हमने बोला SA, सल्फोनिक एसिड। अब ये है एनहाइड्राइड, तो इसको मैंने बोला शॉर्ट में ANA। ये अन्ना नहीं है, ये क्या है? आना, ठीक है। तो ये हो गया कार से आना। और ये है हमारा ईस्टर, तो इसको हम याद रखेंगे AC, कार से आना।
Ase, ये क्या है? ऑयल एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, तो उसी हिसाब से हम इसे याद भी रखेंगे, कार से आना एसी ऑयल हैलाइड। और ये है हमारे पास अमाइड। लिटिल स्ट्रेंज बट यू कैन रिमेम्बर दिस, कार से आना एसी ऑयल हैलाइड अमाइड, ये क्या है? साइनाइड। तो साइनाइड को हम क्या बोलेंगे? ओके ठीक है, सो दिस इज नॉट पर्टिकुलर टू टेल अबाउट एनीवन who may be there in the who may be attending this class, ठीक है, दिस इज इन जनरल। तो CN को हम याद रख सकते हैं विद द नेम सानिया, बिकॉज ये स्टार्ट होता है साइनाइड से, ठीक है। कार से आना एसी ऑयल हैलाइड अमाइड सानिया, ये क्या है? अल्डिहाइड, तो इसे हम बोलते हैं CHO। और ये है कीटोन, इसे हम बोलते हैं चौकी। तो इन दोनों को आप कंबाइन करके भी याद रख सकते हो, कार से आना एसी ऑयल हैलाइड अमाइड सानिया चौकी। पर ये क्या हो गया? अल्कोहल। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? थायोल। और ये हो गया फिनॉल, इसको आप याद रख सकते हो डबल ट्रिपल, और ये है हेलो, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप इन प्रायोरिटी सीक्वेंस को याद रख सकते हो। आप इसके अलावा कोई और भी ट्रिक बना सकते हो और उसको मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ये आपको समझ में आया सारा? यस Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो ये एक तरीका है जिससे आप प्रायोरिटी सीक्वेंस को याद रख सकते हो, और इसको हम हमारे सारे नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। ओके, एनी डाउट्स स्टिल हियर? No, sir. No, sir. ओके गुड। तो आज हमने बेसिक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, and then we'll continue seeing some more examples in next class, and then we'll also see the nomenclature of phenols and ethers. Okay, so I hope you understood what all we discussed in today's session. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे देंगे एक बार, ठीक है बच्चा लोग? आप लोग सब अपना नाम लिख के अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। yes, everyone please give their attendance. Who is Mohit Bhatt? Anyone from our class? Mohit Bhatt? दीपाली मैम वो मेरे एक टीचर हैं। Oh, sorry. I was just wondering if मैंने किसी बच्चे को शेयर किया था लिंक। Okay, sir, no issue. यस मैम, वो भी चेक करें। Fine, no issue, sir. Priyanka, are you there? Yes, ma'am. Yes, you'll every day better maintain. Okay, sir. Anyways, we'll be doing that, but then you'll have to maintain the attendance because we'll have to share this in the school. Okay? Yes. Yeah, okay, ma'am. Yeah. Fine. शुभम सर आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। Sure sir. थैंक यू शुभम सर। Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, Shubham, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank sir. you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.